Hello everyone. So myself, Mr. Pikesh Kumar, HOD in the Psychiatric Department, Metro College of Nursing in Greater Noida. So today is my subject is the research. In that there is unit of the introduction of the statistics. Already some of the part of the statistics we have covered in the previous classes. So today we will see the measures of the central tendency. So first of all we have to understand the central tendency. Central tendency का मीन मतलब क्या होता है? What do you mean by the central tendency? So central tendency, it is a concentration of the particular respondent or any subject. When we are selecting any population and if we want to select any sample from the population, and whatever data we are collecting from their respondents, and respondents will be surrounding of the concentration, is known as central tendency. And how to measure the central tendency? There are some of the methods we are using to calculate the central tendency and to measure the central tendency here. So some of the part of the central tendency we'll discuss later on. So before the central tendency, maybe it is a concentration, and these are the values surrounding of the concentration, surrounding of the particular data is known as central tendency. सेंट्रल टेंडेंसी एक प्रकार से एक सेंट्रल पार्ट के सराउंडिंग जो कॉन्सेंट्रेशन होता है, जितने भी हमारे सैंपल्स होते हैं उन सैंपल्स से जो डेटा हम लेते हैं, एक हमारा कॉन्सेंट्रेशन क्या है? कॉन्सेंट्रेशन इज द रिसर्चर. रिसर्चर के चारों तरफ जो सैंपल्स रहते हैं उन सैंपल्स से जो भी रिस्पॉन्स आता है, वट एवर डेटा इज कमिंग while we are gathering, while we are doing any interview or any type of methods we are using to collect the data. So in that collection of the data, so many concentration is surrounding of the researcher, and he will be have the sum of the value, that is the average value निकालते हैं. एवरेज वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले उस डेटा में से हमें एक एवरेज वैल्यू को निकालना है. उस एवरेज वैल्यू को निकालने के लिए हम we are using one of the formula, that is central tendency, measure of central tendency. So here this is a part of the measure of central tendency. There are mean, measure of central tendency, arithmetic mean, median, mode, geometric mean, and harmonic mean. So there are 5 aspects of the arithmetic measures of the central tendency. 5 आपकी स्केल्स होती हैं, 5 मेथड्स होते हैं, 5 टेक्निक्स होती हैं, जिससे कि हमें सेंट्रल टेंडेंसी को निकाला जाता है. उस सेंट्रल टेंडेंसी को निकालने के लिए, सेंट्रल एवरेज निकालने के लिए, किसी भी डेटा की एवरेज को निकालने के लिए हम यूज करते हैं डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स. और जो डिफरेंट मेथड्स हैं आपके अरिथमेटिक मीन, मीडियन, मोड, जियोमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, these all type of methods we are using to measure the central tendency. तो बच्चों हियर विल सी द अरिथमेटिक मीन. अरिथमेटिक मीन का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय द अरिथमेटिक मीन? So this means already we have discussed, we have to find out any average value from the following data. जो डेटा होता है उससे हम उस डेटा से एक एवरेज वैल्यू निकालते हैं. उस एवरेज वैल्यू को निकालने के लिए हम कौन सा यूज करते हैं? अरिथमेटिक मीन फॉर्मूला यूज करते हैं. So this means computed by the dividing sum of the all values by total number of the values. उस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि मीन निकालने के लिए, मीन को कंप्यूट करने के लिए जितनी भी वैल्यूज होती हैं उनको हम एक साथ जोड़ देते हैं और उसके बाद हम डिवाइड कर देते हैं टोटल नंबर ऑफ दी वैल्यूज. कितनी आपकी वैल्यूज हैं? जैसे कि हम एक एग्जांपल लेना चाहेंगे कि हीमोग्लोबिन ऑफ दी टोटल 10%, 10% का डिफरेंट डिफरेंट हीमोग्लोबिन होता है. जैसे किसी का 8.2 है, किसी का 9.5 है, किसी का 8.5 है, किसी का 8 है, किसी का 10.2 है, किसी का 10.5 है. There are different categories or values of the hemoglobin of the 10%. So जितने भी हीमोग्लोबिन की जो वैल्यू आई है उनको हम प्लस करेंगे. कितने मेंबर है? टोटल रिस्पोंडेंट कितने थे? टोटल 10 रिस्पोंडेंट्स. उन दैट वी हैव टू डिवाइड ऑफ द 10 मेंबर्स को डिवाइड करेंगे, जिससे कि हमारी एक्स मीन वैल्यू निकल जाएगी. एक्स मीन निकालने के लिए हम क्या करेंगे? रिप्रेजेंट करेंगे एक्स मीन. एक्स मीन, एक्स बार मीन, ये जो होता है डिनोट करते हैं इसको हम अरिथमेटिक मीन को
x bar mean. X bar mean is equal to sum of the values, that is a sum x, ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है आपका sum x divided by number of the values. कितनी values हैं? Total number of values here is n in the following column. Again x bar mean is equal to sum x upon n. अब देखिए यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट जो डेटाज होता है उसके लिए हम डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूला यूज करते हैं. यहाँ पर ये एक नॉर्मल फॉर्मूला है, नॉर्मल एक कैटेगरी है जिसमें कि फ्रीक्वेंसी नहीं होती है. विदाउट एनी फ्रीक्वेंसी हियर वी आर डिवाइडिंग सम ऑफ द टोटल वैल्यू, जो ओनली नॉर्मल डाटा होता है. नॉर्मल डेटा का मतलब होता है कोई भी हम, जैसे कि टोटल 15 लोग हैं जिन्होंने किसी मार्केट में जाकर चीनी खरीदी है, तो मार्केट में शॉप से चीनी खरीदी है, उस चीनी के अंदर किसी ने 2 किलो खरीदी है, किसी ने 1 किलो खरीदी है, किसी ने 5 केजी खरीदी है, किसी ने 3 केजी खरीदी है, किसी ने 4 केजी खरीदी है. इस तरह उन्होंने टोटल केवल जो आप स्टूडेंट जो हैं, जो जिन्होंने खरीदी है, जो कस्टमर थे, उनकी संख्या जो थी 10. 10 का जो डाटा है वो इस प्रकार है, किसी ने 2 किलो है, किसी का 1 किलो है, किसी का 3 किलो है. इस तरह का उसका ये डाटा है. हम उस डाटा को नॉर्मल डाटा कहेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई भी फ्रीक्वेंसी नहीं. उस फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग टू हम कोई भी फ्रीक्वेंसी, दिस अ नॉर्मल डाटा, उस नॉर्मल डाटा को कैलकुलेट करने के लिए हम x बार मीन इक्वल टू सम x अपॉन n इस फॉर्मूला को यूज करते हैं. यहाँ आपको क्लियर हो गया होगा. सो नेक्स्ट मूव ऑन द कैलकुलेट द मीन ऑफ द गिवन डेटा. जैसे कि आपको डेटा यहाँ दिया हुआ है 10, 12, 11, 12, 13, 14, 15, 14, 14, 16, 14, 17, 18, 9, 5, 15. ये टोटल आपका डाटा आप कैलकुलेट कर सकते हो. यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 रिस्पॉन्सों का ये एक डेटा है. उस डेटा को हम कैलकुलेट करेंगे, तो मीन का फॉर्मूला यूज करने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे x मीन, x बार मीन, x बार मीन इक्वल टू सम x डिवाइडेड बाय n. तो x बार मीन 10 प्लस 12 प्लस 11 प्लस 12 प्लस 13 प्लस 14 प्लस 15 प्लस 14 प्लस 14 प्लस 16 प्लस 14 प्लस 17 प्लस 18 प्लस 9 प्लस 5 अपॉन 50. हम इसमें 15 का भाग दे देंगे. तो एक्स मीन बार के अंदर जो टोटल ऊपर कैलकुलेट करेंगे, ऐड करेंगे, ऐड ऑन कर करके जिसका जो टोटल आ रहा है आपका 204 अपॉन 50. इसका जो आया है, इसका निकालने के बाद हम निकालेंगे 13.6. तो मीन इज इक्वल टू 13.6. यहाँ पर मीन जो निकल के आया है वो आपका है 13.6. दिस इज द एवरेज वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग डेटा. So here understand this part of x mean. Again calculating the arithmetic mean from a discrete frequency table. दो प्रकार की टेबल होती हैं. एक तो आपकी डिस्क्रीट टेबल होती है, फ्रीक्वेंसी टेबल होती है, और दूसरी होती है कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी टेबल. हम यहाँ पर आपको दिया हुआ है एग्जाम में, यदि आपका सिंपल डेटा आ रहा है तो सिंपल डेटा के लिए हम x बार मीन इक्वल टू सम x अपॉन n का फॉर्मूला यूज करेंगे ओनली फॉर द नॉर्मल डेटा के लिए. बट हियर हम डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी टेबल के अंदर हम यूज कर रहे हैं. तो टेबल अब जब हम यूज कर रहे हैं तो टेबल का मतलब है कि उस टेबल के अंदर फ्रीक्वेंसी तो जरूर आएगी. यदि वो टेबल फॉर्म में नहीं है तो उसका मतलब है दैट इज अ सिंपल डेटा. यदि टेबल फॉर्म के अंदर है तो उसका मतलब है कि वो चाहे डिस्क्रीट डेटा है चाहे कंटिन्यूअस डेटा है. अभी आप ये समझ लीजिए कि डिस्क्रीट डेटा क्या है, कंटिन्यूअस डेटा क्या है. डिस्क्रीट का मतलब होता है कि जो आपकी एक्स वैल्यू है वो नॉर्मल फॉर्म के अंदर आएगी, नॉमिनल डाटा के रूप में आएगी, ठीक है. बट जो उसकी जो नीचे की जो कंटिन्यूअस जो फ्रीक्वेंसी टेबल है उसके अंदर जो फॉर्म आएगा वो आपका आएगा इंटरवल डेटा फॉर्म. जैसे कि किसी की एज है 20 to 25, हमने डेटा लिया है 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35, 35 to 40, 40 to 45. इस तरह का जो डेटा हमने उसको इंटरवल फॉर्म में लिया है. उसके बाद जो नीचे एक फ्रीक्वेंसी आएगी उस फ्रीक्वेंसी को हम कितनी फ्रीक्वेंसी, जैसे उस अंडर कैटेगरी के अंदर, उस एज कैटेगरी के अंदर हाउ मेनी रिस्पोंडेंट्स आर कमिंग, जिनकी एज 20 से 25 साल के बीच में है, उनमें टोटल सैंपल साइज के अंदर वो कितने हैं टोटल.
उनकी जो कैटेगरी है वो आ जाएगी, वो काउंटिंग जो है वो आ जाएगी आपकी इसके अंदर फ्रीक्वेंसी के। ठीक है, तो इधर हम बात करते हैं कि अरिथमेटिक मीन फ्रॉम ए डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी टेबल। यदि आपको चलो कंफ्यूज होता है, यदि नहीं दिया है, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी टेबल नहीं दिया हुआ है, सो आपको जो डेटा दिया हुआ है डायरेक्ट टेबल के अंदर, और उसमें केवल ये दिखाया केवल आपसे पूछा जा रहा है कि यू हैव टू फाइंड आउट द अरिथमेटिक मीन। तो उस कंडीशन में आपको समझ जाना चाहिए कि इस डेटा, ये नॉर्मल डेटा है, इस नॉर्मल डेटा के अंदर फ्रीक्वेंसी दी हुई है, इसका मतलब है टेबल फॉर्म के अंदर है, तो इससे डिस्क्रीट डेटा निकलवा रहा है। यदि डिस्क्रीट डेटा ना, यदि उसके अंदर, यदि ऊपर एक्स वैल्यू के अंदर यदि इंटरवल फॉर्म में आ रहा है, तो समझ जाइएगा कि ये उसके अंदर, ये इंटरवल फॉर्म के अंदर, ये कंटिन्यूस डेटा के अंदर पूछा जा रहा है कि किसमें अरिथमेटिक मीन में हमें कंटिन्यूस डेटा के अंदर अरिथमेटिक मीन निकालना है। क्लियर? सो मीन कैलकुलेटेड यूजिंग द फॉलोइंग फॉर्मूला। हम यहाँ पर मीन निकालने के लिए, अरिथमेटिक मीन निकालने के लिए डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी टेबल के अंदर इसका फॉर्मूला जो है आपका एक्स बार मीन इक्वल टू सम एफ एक्स अपॉन सम एफ। ये आपको फॉर्मूला यहाँ पर दिया हुआ है, एक्स बार मीन इक्वल टू सम एफ एक्स सम एफ। यहाँ पर टोटल एफ आ गया, सम एफ आ गया, और ऊपर आ गया सम एफ एक्स। अब वहां पर हमने क्या यूज किया था, सम एक्स अपॉन एफ। अब यहाँ पर आ गया आपका सम एफ एक्स फ्रीक्वेंसी वैल्यू upon sum f. So here x bar mean is the arithmetic mean. Sum f x, sum total of the variable multiplied by the corresponding frequency. So here we have, in that we have to take f x1 plus f x2 plus f x3 so on f x n. ये है आपका सम टोटल ऑफ द वेरिएबल जो मल्टीप्लाइड बाय द कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाइड होता है, उसके हिसाब से हम इसको ऐड ऑन कर सकते हैं। उसके बाद सम एफ है आपका टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज एंड ऑब्जर्वेशन। जितने भी हमने टोटल सैंपल लिए हैं, जितनी हमारी सैंपल साइज है, टोटल ऑब्जर्वेशनल वैल्यूज हैं, उन वैल्यूज को हम सम एफ में काउंट करते हैं। क्लियर? सो हियर आपको समझ में आ गया कि अरिथमेटिक मीन फ्रॉम ए डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी टेबल के लिए ये फॉर्मूला है। हम आगे एग्जांपल यूज करेंगे यहाँ पर। सो डेटा गिवन एज ऑफ 100 एडोलसेंट गर्ल, फाइंड द मीन एज। यहाँ पर 100 एडोलसेंट गर्ल है जिनका हमें मीन एज फाइंड आउट करना। ठीक है, अब इसके अंदर जो एज क्राइटेरिया यहाँ पर दिया हुआ है कि 16 ईयर्स की एज में है, 17 ईयर्स की एज में है, 18 ईयर्स की एज में है, 19 ईयर्स की एज में है। These are the adolescent girls starting from the 16 year to 19 years. Here is data is given like number of student. जिनकी एज 16 है वो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 35। जिनकी एज 17 है, जिनमें नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, उनकी जिनकी एज 17 है 31। नंबर ऑफ स्टूडेंट 20, जिनकी एज है 18 years। नंबर ऑफ 40 स्टूडेंट्स, आउट ऑफ 100 में से 14 स्टूडेंट जिनकी एज 19 ईयर्स है। ठीक है, ये इस तरह का डेटा हुआ है। इस डेटा के अंदर हम निकालेंगे एफ एक्स। जैसे पिछली बार आपका एक, अभी आपको इससे पहले मैंने बताया था कि इसका फॉर्मूला हम सम एफ एक्स करेंगे, सम मतलब जोड़ देंगे, एफ एक्स को मल्टीप्लाइड करेंगे। ठीक है, सम वैल्यूज को मल्टीप्लाइड करेंगे यहाँ पर, तो सम एफ एक्स अपॉन सम एफ। ठीक है, तो यहाँ पर एफ एक्स का मतलब है 16 एक्स वैल्यू आ गई आपकी, एफ 35 आ गया, 35 इंटू 16 दैट इज 560। अगेन नंबर ऑफ स्टूडेंट दैट इज फ्रीक्वेंसी इज 31, 31 is 2 that is the age in years 17 multiplied करेंगे 527, then again 20 multiplied by 18 that is a 360। Here is a 14 multiplied by 19 that is a 267। ये एफ आपका अलग अलग ईयर्स के हिसाब से, एज के हिसाब से आपका निकल गया है। यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है उनकी फ्रीक्वेंसी यहाँ पर दी हुई है, उस फ्रीक्वेंसी के हिसाब से आपका ये मल्टीप्लाइड करके इस तरह का आपका ये ऊपर यहाँ पर एफ आ गया है। अब देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट एफ, यहाँ पर हम क्योंकि फॉर्मूला के अंदर सम एफ पूछा गया है, सम एफ का मतलब है टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी और वैल्यूज। सो टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज और ऑब्जर्वेशन इसके अंदर हम यूज करेंगे सम एफ इक्वल टू 100। हम इसको ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे 35 प्लस
31 + 20 + 14। इसको जोड़ने के बाद सम f इक्वल टू 100 आ गया यहाँ पर। बाद में हम क्या करेंगे, एफ एक्स। अब आगे फॉर्मूला में क्या पूछा गया है, सम एफ एक्स हमें निकालना है, क्योंकि जो फॉर्मूला दिया हुआ है उसमें जो फॉर्मूला में जो दिया हुआ है उसके हिसाब से जो भी आपके कीज हैं उन कीज को हमें सबसे पहले फॉर्मुलेट करना है। उन फॉर्मुलेट करने के बाद सो दैट वी कैन इम्प्लीमेंट फॉलोइंग डेटा, उस डेटा को हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं सो दैट वी कैन evaluate the effective result or effective whatever we want to get the result so that it will come on by the formula. So here sum fx is equal to टोटल हम जोड़ेंगे, यहाँ पर ऐड करेंगे 560 527 प्लस 3 + 60 10 + 266। इसको जोड़ने के बाद टोटल आपका आ रहा है यहाँ पर 1713 टोटल आ गया। अब देखिए आप आराम से इजीली आप उसको कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ पर कैलकुलेट करके आप इस तरह का कैलकुलेट कर सकते हो, एक्स बार मीन इक्वल टू सम एफ एक्स अपॉन सम एफ। ये आपको फॉर्मूला पहले बताया गया था, उस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग टू यहाँ पर सम एफ एक्स देखिए कितना आ रहा है 1713 आ रहा है आपका। क्लियर, ये कितने आपके सम एफ है, सम एफ का मतलब है दैट इज 100। 100 को हम करेंगे अपॉन करेंगे तो कितना आएगा 17.13। सो हियर मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज 17.13। ये आपका मीन आ जाएगा, दिस एवरेज वैल्यू ऑफ द डाटा जो मीन है वो आपकी यहाँ पर 17.13 आ जाती है। यहाँ पर सभी को समझ में आ गया हो, क्लियर हो गया होगा। सो नेक्स्ट मूव ऑन, नेक्स्ट पार्ट, कैलकुलेटिंग अरिथमेटिक मीन फ्रॉम ए कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी टेबल। अब यहाँ पर आप देखिए कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी टेबल के लिए फॉर्मूला सेम है, वहां पर भी सेम है, यहाँ भी सेम फॉर्मूला है, कोई भी डिफरेंस नहीं। बट एक डिफरेंस यहाँ पर ये आता है कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी के अंदर, क्योंकि वहां पर ये इंटरवल फॉर्म के अंदर आता है, तो इंटरवल फॉर्म के लिए हमें मिड पॉइंट निकालना बहुत जरूरी होता है, उसका हमें एक्स वैल्यू निकालना है सो दैट हम उसको मल्टीप्लाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लाइड करने के लिए, क्योंकि हम डायरेक्ट इंटरवल को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि दो डिफरेंट वैल्यूज के बीच में क्या रहता है, इंटरवल होता है, तो इंटरवल के अंदर हम कैसे करेंगे, वी विल बी मोर कंफ्यूजेबल। सो इन दैट उस कंफ्यूज को कम करने के लिए हम अपना माइंड यूज में लेंगे। माइंड यूज में लेने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर मिड पॉइंट को हम निकालेंगे। मिड पॉइंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दो आपकी वैल्यू दी हुई होती है इंटरवल के अंदर, एक तो आपकी लोवेस्ट वैल्यू होती है और एक होती है आपकी अपर वैल्यू होती है। तो यहाँ पर लोवेस्ट वैल्यू कितनी है आपकी, जैसे 20 to 25 लेंगे तो 20 इज द क्या है आपकी लोवेस्ट वैल्यू, और हाईएस्ट जो वैल्यू है अपर लिमिट जो है आपकी वो है 25, उसको अपॉन करके 2 कर देंगे। उसके बाद जो मिड पॉइंट निकल के आएगा उसको मिड पॉइंट कहेंगे। यहाँ पर केवल यही अंतर है कि हम यहाँ पर मिड पॉइंट निकालते हैं। ठीक है, यदि डेटा कंटिन्यूअस फॉर्म के अंदर होता है, और मैंने पिछली बार आपको बताया था कि ये एक टेबल फॉर्म बना हुआ है, फ्रीक्वेंसी यहाँ पर दी हुई है, सिंपल डेटा आपका दिया हुआ है यहाँ पर एज इन द ईयर्स के अंदर, जो भी आपका यहाँ पर कि ये जो एक्स बार मीन है सम एफ एक्स इक्वल टू सम एफ दैट इज एक्स मिड पॉइंट ऑफ द क्लास इंटरवल। जो क्लास इंटरवल हमने बनाना है, उस क्लास इंटरवल जो आया है उस क्लास इंटरवल का जो मिड पॉइंट हमने निकाला है उसको हम कहेंगे एक्स। एफ इज द कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी, कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी आ जाएगी एफ। सो मिड पॉइंट ऑफ द क्लास इंटरवल इज कैलकुलेटेड बाय, मिड पॉइंट को क्लास इंटरवल को कैलकुलेट करने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, मिड पॉइंट इक्वल टू लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2, इस तरह का ये यूज किया। अब यहाँ देखिए कैलकुलेट द मीन एज ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ पीपल, मतलब ये ग्रुप ऑफ पीपल्स दिए हुए हैं, उन ग्रुप ऑफ पीपल के अंदर ये क्लास इंटरवल ऑफ एज दी हुई है 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30 एंड 30 to 35। अब आप देख लीजिए यहाँ पर कि ऑलरेडी यहाँ पर दी हुई है आपकी 15 to 20, 25 to 25 to 30 एंड 30 to 35। दिस इज द नॉट ए एक नॉर्मल डेटा, ये नॉर्मल डेटा आपका नहीं है, यहाँ पर क्या है इंटरवल फॉर्म के अंदर है,
इसलिए इंटरवल के अंदर जैसे कि यहाँ पर ये जो 15 है ये क्या है, लोअर लिमिट, अपर लिमिट क्या है 20 यहाँ पर क्या है, इस पैराग्राफ के अंदर क्या है, ये कॉलम के अंदर 20 इज द lower limit and upper limit is 25. Here is the 25 is the in this column 25, then again upper limit is 30. Here in this column 30 is the lower limit, 35 is the upper limit. Clear? So here मिड पॉइंट निकालने के लिए मिड पॉइंट निकाल दिया, ठीक है, ये पूरा दिया हुआ है। इसके बाद हम कैलकुलेट बाद में करेंगे क्योंकि ये आपका डेटा दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर। इसके अंदर जो नंबर ऑफ पीपल है आपके 15 है, 20 है, 15 से 20 के बीच में जो एज है जिनकी 15 पीपल है जी, जो 20 लोग हैं जिनकी एज है 20 से 25 साल, जो 40 लोग हैं वो हैं 25 से 30 एज है उनकी, 60 जो लोग हैं उनकी 30 to 35 एज है। इस तरह का एज क्राइटेरिया उनका इंटरवल फॉर्म में दिया हुआ है। तो उसके हिसाब से हमें क्या करना है, मीन को कैलकुलेट, अरिथमेटिक मीन को हमें कैलकुलेट करना है। सो हियर कैलकुलेट मीन एज ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ पीपल। इस तरह का ग्रुप ऑफ पीपल दिए हुए हैं। यहाँ पर कैलकुलेट पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे और टेबल बनाने के बाद ही हम उसको टेबल को सॉल्व करने के बाद ही जो वैल्यूज आती हैं उन वैल्यू के हिसाब से हम फॉर्मूला को डेवलप कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने ये जो दिया हुआ है इस टेबल के अंदर, अगेन मिड पॉइंट हमें निकाला है। सो मिड पॉइंट निकालने के लिए यहाँ पर हमने यूज कर रहे हैं आपका कि 15 ये दिया हुआ है आपका यहाँ पर 15 प्लस 20 को प्लस करेंगे तो कितना आएगा 35। हियर इज द लोवेस्ट लिमिट, इज अपर लिमिट क्या है 20 प्लस 15 प्लस 20 अपॉन 2। सो हियर इज 45 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा 17। 35 में किसका भाग देंगे, यस राइट, कितना भाग देंगे हम 2 का, तो 17.5। 20 प्लस 25 करेंगे उसमें 2 का भाग देंगे तो 22.5 आ गया। यहाँ पर 25 प्लस 30 करेंगे 2 अपॉन 2 करेंगे 27.5 आ गया। और यहाँ पर 30 प्लस 35 करेंगे तो इसको अपॉन 2 करके 32.5 आ गया। इस तरह का मिड पॉइंट हमने हर कैटेगरी का हमने मिड पॉइंट यहाँ पर निकाल लिया है। अब देखिए आगे वो सेम फॉर्मूला आपका आगे एफ एक्स, क्योंकि सम एफ एक्स हमें निकालना और सम एफ का मतलब ये आप समझ रहे हो यहाँ पर 15 प्लस 20 प्लस 40 प्लस 60 सम एफ आ गया। सम एफ आ गया, सम एफ का मतलब है दैट इज 135। ये टोटल करके आपका 135 आ गया। सम एफ एक्स आपने निकाला, निकालने के लिए आपने नंबर ऑफ पीपल यहाँ दिए हुए हैं 15 20 40 60, अगेन मिड पॉइंट के अंदर दिए हुए हैं 17.5 12 22.5 27.5 32.5 इस तरह का दिया हुआ। हम इसको क्या करेंगे, गुणा करेंगे 15 गुणा 17.5 इसको करेंगे 262.5। इस तरह के हमने ये निकाल लिया, एफ एक्स निकाल लिया 450 1100 1950 इस तरह का। इसको टोटल करके हम सम एफ एक्स निकाल लेंगे 3762.5 3762.5 हमने निकाल लिया। अब उसके बाद ये फॉर्मूला यूज करते हुए यहाँ पर हम अपॉन 135 कर देंगे। यहाँ पर ये जो एक्स बार मीन निकल के आया आपका 27.87, ठीक है। तो ये एक्स आपका मीन निकल के यहाँ पर आ जाता है 27.87। सो देयरफॉर मीन एज ऑफ द पीपल इन दिस ग्रुप विल बी 27.87 ईयर्स। द एवरेज वैल्यू आपकी निकल के आ जाती है 27.87, ठीक है। यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा। Then next move on the next part, that is a merit of the arithmetic mean। अब इसके मेरिट्स क्या होते हैं अरिथमेटिक मीन के। मेरिट का मतलब होता है कि दीज आर द सम ऑफ द एडवांटेजेस क्या हैं। ये एक सिंपल एवरेज टू अंडरस्टैंड, ये बहुत ज्यादा हम इसको इस एवरेज निकालने के लिए बहुत अच्छी इजीली फॉर्मूला है, इजीली कंप्यूट कर सकते हैं, इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं मीन निकालने के लिए। इट इज अफेक्टेड बाय द वैल्यू ऑफ ईच आइटम इन सीरीज, मतलब प्रत्येक सीरीज के अंदर प्रत्येक आइटम की जो वैल्यू है उसके द्वारा ये अफेक्टेड होता है। डिफाइंड बाय ए फिक्स्ड मैथमेटिकल फार्मूला, एक प्रकार से मैथमेटिकल फार्मूला के द्वारा फिक्स होता है, डिफाइंड होता है फिक्स्ड मैथमेटिकल फार्मूला, इसका कोई फेरबदल नहीं है ना चेंज हो सकता है। ये मैथमेटिकल फार्मूला जो दिया हुआ है फिक्स उसी के द्वारा डिफाइन होता है। वी कैन नॉट कंप्यूट बाय अनदर फार्मूला।
So it can be treated algebraically. Algebraically मतलब we can calculate by some of the values. It can be calculated in the numerical form. It can show the some of the characteristics and features of the data. So a reliable method of the calculating average के लिए मेथड ये बहुत बढ़िया रिलायबल मेथड होता है. सो ये है एक मेरिट जो है एडवांटेजेस है इसके अरिथमेटिक मीन के अंदर कि किस तरह का हम है. ये हम बहुत इजी टू कंप्यूट होता है, इजीली अंडरस्टैंड होता है. प्रत्येक सीरीज के अंदर जो वैल्यू प्रत्येक वैल्यू होती है, आइटम की जो वैल्यू होती है वो अफेक्टेड इसके द्वारा अफेक्टेड होती है. ठीक है, इसमें फिक्स मैथमेटिकल फार्मूला यूज होता है, ये अलजेब्रिकली यूज होती है, ट्रीटेड होती है. ठीक है, हम इसको सिंपल वे में इसको कैलकुलेट कर सकते हैं. रिलायबल मेथड ऑफ द कैलकुलेटिंग एवरेज, कैलकुलेटिंग एवरेज के लिए बहुत बढ़िया रिलायबल मेथड होता है. नेक्स्ट इज द डीमेरिट्स. डीमेरिट्स का मतलब है डिसएडवांटेज ऑफ द अरिथमेटिक. ये वेरी स्मॉल है, वेरी स्मॉल और लार्ज आइटम है, यूजुअली अफेक्ट द वैल्यू ऑफ द एवरेज. मतलब हमेशा क्या होता है कि जो कुछ कुछ आइटम जो होते हैं वो स्मॉल होते हैं, कुछ लार्ज होते हैं, जो किसी भी वैल्यू की एवरेज जो होती है उसको के द्वारा अफेक्ट होते हैं. ठीक है, इन डिस्ट्रीब्यूशन विद ओपन एंडेड क्लासेस, ओपन एंडेड क्लासेस के साथ डिस्ट्रीब्यूट होता है. वैल्यूज ऑफ द मीन कैन नॉट बी कंप्यूटेड विदाउट मेकिंग अजम्पशन. अजम्पशन बनाए बिना अजम्पशन बनाए बिना हम किसी भी मीन को कंप्यूट मीन की वैल्यू को कंप्यूट नहीं कर सकते. ठीक है, इट इज नॉट ऑलवेज ए गुड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. एक प्रकार से एक अच्छा मेथड नहीं है, यहाँ पर बता रहा है कि मेथड नहीं है अच्छा जहां से हम मीन को निकाल सकें. सेंट्रल टेंडेंसी के लिए बहुत अच्छा मेथड नहीं है. तो ये डीमेरिट्स में हमेशा आप समझते हो कि ऑलवेज डिसएडवांटेज आते हैं यहाँ पर. तो डिसएडवांटेज के अंदर हम यहाँ पर निकालते हैं इन चीजों को. तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमने जो सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर जो मेथड ने यहाँ पर हमने निकाला है उसके अंदर जो आप समझ सकते हो कि किस तरह का हमने निकाला है और निकाल करके हम अरिथमेटिक मीन को हम निकाल सकते हैं. सो नेक्स्ट क्लास जो है आपकी वो मीडियन निकालेंगे हम कि कैसे मीडियन निकाला जाता है. सो आप समझ गए होंगे कि ये मीन निकालने के लिए हमें हमेशा हमने क्या लिया था. जो मीन का सबसे पहले सिंपल डेटा लिया था, उसके बाद फ्रीक्वेंसी टेबल जो जो स्टेट फ्रीक्वेंसी टेबल है उसको यूज किया गया था. उसके बाद वो फॉर्मूला यूज किया गया था. उसके बाद हमने कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी टेबल के अंदर हमने क्या निकाला था, क्योंकि उसमें इंटरवल डाटा होता है, उस इंटरवल डाटा का हमें क्या निकालना है, मिडिल वैल्यू निकालना है. तो मिडिल वैल्यू निकालने के लिए हमेशा हम क्या करेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे जो है आपका सर. तो इस तरह की एनी डाउट होती है आपकी तो कैन क्लैरिफाई. थैंक यू एवरीवन.